very few students have joined till now, right? Yes, ma'am. Right. Anyway, we can have short kind of like conversation till the time rest of the students also just get lined up in the class, right? So yes, I can see Priyasha and Akanksha there in the class. Shanta is always there, also there. बच्चों please अपने cameras on कर दो so that we can have a proper session. I can have a proper view of what is happening and we can learn in a better way. ठीक है? सब बच्चे please अपना cameras on करो. मिस आपका बहुत थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है. You're not able to hear me. मम्मी बच्चों It आपको is मेरी बात audible. it It is is audible. audible. Maybe बच्चे आपका कोई network issue हो सकता है, ठीक है? Move to an area where you can get a proper network, ठीक है? Okay. So yes, we'll just start up one by one and I'll be asking you a few things and then we'll jump on to the class, right? The basic things that we're supposed to do today in the class. So yes, Nishanta, bache, how are you? मिस फाइन. Okay, that's great. And what were you doing for the class? मिस ब्रेक हो रहा है आपका वॉइस मेरा सुनाई नहीं दे रहा. What were you doing before the class? मिस लॉन्च Not able to hear. I'm saying, what were you doing before the class? मिस लॉन्च Learning. Okay, you were learning. I was learning. What were you learning? मिस लिटरेचर साइंस. Okay, आप बोल सकते हो I was learning science. That is great. Means you were just utilizing your time. Very good, Nishanta. What about you, Priyasha? What were you doing? Ma'am, I completed my hair before the class. I completed my Hair. Acha fair work. You just completed your fair work. Fair नहीं बोला करो. I completed my fair work just before the class. Right? Okay. How was your weekend? Priyasha, how was your weekend? How was your weekend? क्या मतलब होता है इसका? मुझे हिंदी में समझाओ जरा प्रियाशा, क्या मतलब इसका? How was your weekend? Akanksha, how was your weekend? Fine. My is very friendly. Please speak once again. I'm not able to hear. Your voice is cracking a little bit in between. Please बच्चे फिर से बोलिए. Ma'am, my weekend is very friendly. My weekend is आगे क्या बोला? Very? Is very? I think today maximum of the students are having some sort of network issues, right? Okay, तो वीकेंड होता है. निशांता, आप बता सकते हैं वीकेंड क्या होता है? तो मैंने करवाया हुआ पहले भी. क्या होता है वीकेंड? वॉइस सबका ब्रेक हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है. I think today everyone is having some sort of network issue. Ma'am, are you able to hear what I'm saying properly? Yes, ma'am. प्रियाशा, आपको सुनाई दे रहा है बच्चे? Unmute Priyasha. Yes, ma'am. मैं स्लीप करके ज्वाइन करूँगी तो थोड़ा सा Yes. You can do that. You can do that, Nishanta. Please, you can leave the class and then join once again so that we can get a proper connectivity. So, till the time she just gets back, we'll just Akanksha, you're back now. You can tell me how was your weekend? आप पहले बता सकते हैं कि क्या होता है वीकेंड? हमें बताइए क्या होता है वीकेंड? मैम, संडे को वीकेंड भी बोलते हैं. हाँ, जब भी वीक खत्म होता है उन डेज को वीकेंड कहा जाता है. ठीक है, तो फिर कैसा था आपका वीकेंड? आकांक्षा, आपने मुझे क्या आंसर दिया? माय वीकेंड इज आगे क्या बोला आपने?
Ma'am, my weekend was very good. बच्चे इज नहीं बोलते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, एक बात सुनेंगे, इज नहीं बोलते, Ma'am, my इज was होता है बोलते मेरा हैं. वीकेंड है, ठीक है, मेरा वीकेंड है, बट वीकेंड तो हो गया है, अब तो मंडे आ गया, ठीक है, वीकेंड तो हो गया, माय वीकेंड वाज, बोल सकते हैं My हम, Yes, ma'am. My weekend was very good. हाँ, माय वीकेंड वाज रियली गुड, माय वीकेंड वाज अमेजिंग, इट वाज वंडरफुल, ठीक है प्रियाशा, समझ में आया बच्चे? अब तो नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, प्लीज आंसर मी। Yes, ma'am. गुड गुड, ठीक है, वंडरफुल, अमेजिंग, इट वाज आउटस्टैंडिंग, है ना, ऐसे करके हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम सबसे पहले थोड़े न्यू वर्ड सीखेंगे, ठीक है, since in the last previous classes we were just busy doing some or the other things, but I think it's been a long time we have not done some good words, some new kind of words that you can use in your daily conversation. So do you want to do some new words? I hope Yes, you ma'am. are having your notebooks and your pencil along with you, right? सब कुछ के पास है ना, pencil and notebooks? ठीक है, good. मिस मेरे एक डाउट था, मिस मेरे एक डाउट था। जी जी बोलिए बच्चे, प्लीज स्पीक, क्या डाउट है? मिस what is the meaning of But I will not ENTSUSPICALLY? get like this. I will not get like this. If possible, can you please write in the chat box या फिर थोड़ा properly बोलो, because आपकी voice भी बहुत क्रैक हो रही है, फिर से बोलो। Yes yes निशांता, आप लिख रहे हैं? Because like you speaking, it's hard to just understand what you're saying. Ma'am, 1 second. Redmi 9 Prime. Who is this? Can you please switch on the camera? Redmi 9 Prime. No, Piyush is also there. Unmute, please. Yes, yes, miss. Written? What is your name? What is your name? Miss, my name is Abhishek Jana. Okay. This is your first class? Yes, miss. Okay. Okay, so that is great. You were just hidden somewhere. We were not even able to figure out because your camera was off ना. तो tell us something बच्चे, आपको पता है हम क्या करते हैं जब भी हमारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आता है कोई भी, तो हम उससे बात करते हैं, हम आपसे भी बात करेंगे, ठीक है, तो आपसे हम ये बात करेंगे कि पहले हम पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है, फिर आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, आपके फैमिली में कौन कौन है, जो भी आपको क्या चीजें करना पसंद है, कुछ भी इंग्लिश में मुझे 3-4 लाइन बोल के बताएंगे। बोलो बोलो शाबाश, जब तक सब बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, देन वी कैन जस्ट स्टार्ट अप। कुछ बोल के बताओ मुझे अपने बारे में, 2-3 लाइन्स। Yes, I live in Jagatpur, Sara. My school name is Kalinga English Medium School. बच्चे English Medium School. वेट बच्चे वेट, प्लीज स्टार्टिंग से थोड़े स्लोली स्टार्ट करो, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ वॉइस क्रैकिंग दैट आई एम नॉट इवन एबल टू फिगर आउट एनीथिंग, नॉट इवन व्हाट यू आर स्पीकिंग एंड नॉट इवन द मिस्टेक्स, हाउ विल आई टेल यू? फिर से बोलो प्लीज स्टार्टिंग से। Miss, मैं chat box में Jagatpur. School name is my school name is Kalinga English Medium School. My father name is Amar Kumar Jana. My mother name is Anusha Jana. Okay, okay. But still I feel that some network issues there. Yeah, I understood a little bit. ठीक है बच्चे, that is very good. तो आज मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि आज आप देखेंगे क्लास में क्या हो रहा है, आपके पास नोटबुक है, आप नए नए वर्ड्स जो करेंगे ना वो वर्ड्स करेंगे, ठीक है, आप उन वर्ड्स को नोटबुक में लिख सकते हैं, मे बी आफ्टर 10 और 20 मिनट्स आई गेट बैक टू यू एंड थोड़ा और बात करेंगे, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आती है जब मैं इंग्लिश में बात करती हूँ?
आती है बच्चे? I think it Yes, is just miss. got. Okay. So yes, Nishanta, what were you saying, बच्चे? हाँ, I checked out the chat box just now. The word that you have written is enthusiastically. है ना? Enthusiastically क्या होता है? Do you know? पहले इसको बोलना सीखो, कैसे बोलना है? बोलो enthusiastically. देखो enthusiastically बोलने से अच्छा है पहले enthusiastic बोलना सीखो, ठीक है? Enthusiastic बोलो. मैम अगली क्लास में आप कुछ नई और सिखाए थे क्या? अगली क्लास में मतलब बच्चे यू आर सेइंग दैट द लास्ट क्लास, प्रीवियस क्लास? यस मैम। नो माय डियर, आपकी Okay, क्लास तो मीटिंग के बाद से आज ही हुई है, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट, वी हैव नॉट डन एनीथिंग, ठीक है? एंथुसियास्टिकली क्या होता है? हाँ, क्या होता है? जब हमें कोई चीज को करने का बड़ा ज्यादा जोश होता है. जोश पता है क्या होता है? किसे पता है जोश क्या होता है? पता है किसी को? जैसे कि एक कंपटीशन है आप सबका, ठीक है? कौन सा कंपटीशन है? रेस है, ठीक है? मैराथन है, आप सबको भागना है. फिर जो सबसे ज्यादा तेज भागेगा, फर्स्ट आ जाएगा, वो जीत जाएगा. अब कुछ बच्चे होंगे जो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और जो जीतना चाहता होगा ना, वो रोज प्रैक्टिस करेगा, ठंड में भी प्रैक्टिस करेगा, गर्मी में भी प्रैक्टिस करेगा. वो एंथुसियास्टिक है बहुत, उसमें बहुत जोश है, उसमें बहुत हिम्मत है कोई काम करने की, ठीक है? वो होता है एंथुसियास्टिक, ठीक है? जो बहुत एक्टिव रहता है और जो बहुत जोश में रहता है कुछ काम करने के लिए, उसे बोलते हैं एंथुसियास्टिक. बोल के बताओ निशांता, एंथुसियास्टिक. परफेक्ट. और एंथुसियास्टिकली ऐसे बोल देते हैं इसको, ठीक है? एंथुसियास्टिकली, जैसे निशांता वाज डूइंग हर वर्क वेरी एंथुसियास्टिकली, ठीक है? या फिर निशांता इज एन एंथुसियास्टिक गर्ल, ठीक है? लाइक दिस वी कैन स्पीक, ठीक है बच्चों? ठीक है, very good. You can ask me doubts whenever you face any kind of doubts while reading anything or anything like that. So yeah, अब बच्चों हम लोग वापस से आ जाते हैं, ठीक है? अब हम कुछ words करते हैं, like there are very random kind of words that whatever words will just come into my mind, I'll be just telling those words और आप लिख सकते हैं उन words को, right? So Piyush, I just saw you right now. How have you been? बच्चे, how have you been? How are you? I'm good. तो मैंने हाउ हैव यू बीन पूछ लिया, तो आज पीयूष कंफ्यूज हो गया कि क्या आंसर देना मैम को. हाँ, हाउ हैव यू बीन का मतलब आप कैसे हो, कैसे हो अभी तक, है ना? इतने टाइम के बाद से क्लास हुई है, सो आई एम आस्किंग हाउ हैव यू बीन, कैसे हो, ठीक है? एंड या साइश्री इज आल्सो राइट देयर. सो या साइश्री, आई होप यू आर आल्सो गुड, राइट? Yes, ma'am. Great. Let's do the words now, ठीक है? I'm narrating and I'm just speaking out the words. जिस बच्चे को जो डाउट होगा आप एक बार मुझे बोल देंगे, I will repeat. बीच में कोई नहीं बोलेगा, फिर स्पेलिंग बार बार क्लैश होते हैं, फिर सब बच्चों के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं. डन? ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. अब सबसे पहले मुझे बताओ कि कभी कभी, ठीक है, आप मुझे बताओ कि कांपने को क्या कहते हैं? कितनी बार इतनी ठंड होती है कि हम लोग कांपने लग जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Anybody knows it? कांपने को, No, जैसे कि ma'am. बहुत सर्दी है और ठंडे पानी से नहाना है, ठीक है? It is too cold and you have to take bath with some cold water. And after you take bath, what will you do? कैसे कांपते हैं? मुझे कोई काम के दिखा सकते हैं थोड़ा सा? पीयूष is doing a little bit expressions, ठीक है? तो इसे बोलते हैं बच्चे शिवरिंग. बच्चे कुछ बोल रहे हो आप? निशांता, शिवरिंग, शिवरिंग लिखिए प्लीज अपनी नोटबुक्स में. शिवरिंग, ऐसा तो नहीं कोई बच्चा था जिसको आता था, बहुत ही बेसिक सा वर्ड है. आई एम स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक वर्ड्स दैट आर जस्ट कमिंग अप अलोंग द लाइन, ठीक है? द वर्ड इज शिवरिंग, मैम शिवरिंग बुलाए हैं एक बार. क्या मतलब? आपने शिवरिंग एक बार बुलाया है, ये स्पेलिंग करवाया है? देन Yes, व्हाई ma'am. डिड यू नॉट रिस्पॉन्ड? मैंने तो अभी पूछा, इसका मतलब है कि मैंने वर्ड करवाया था और आपने उसको रिवाइज नहीं किया. हाँ पीयूष, इसका मतलब है बच्चे आपने रिवाइज नहीं किया. अगर मैंने करवाया है फिर भी नहीं आया, मैंने पूछा पहले सबसे,
आंसर तो किसी ने नहीं दिया, ठीक है। ओके, जिसने किया हुआ है यू कैन स्किप इट, एंड द वंस हु हैव नॉट डन कैन राइट इट डाउन, ठीक है। जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। शिवरिंग, SHIVERING, ठीक है, डन। ओके, अब एक बहुत अच्छा वर्ड करते हैं। आई होप एवरीबडी इज डन। एक बार बोलिए। श्योर माय डियर, SHIVERING, राइट। कमिंग ऑन टू द सेकेंड वर्ड, ये हमने पता नहीं सुना है आप लोगों ने कि नहीं सुना है। पहले मैं वर्ड बताती हूँ, प्लीज सुनना ध्यान से। मैनिपुलेट, मैनिपुलेट, सुना है कभी ये वर्ड मैनिपुलेट? नो मैम। कभी No, ये no, वर्ड ma'am. कहाँ कोई बच्चा बोल रहा है? हु इज स्पीकिंग समथिंग, प्लीज बच्चों बोलो ना। नो नो डाउट्स, ठीक है। मैनिपुलेट, द वर्ड इज मैनिपुलेट। नहीं सुना है किसी ने भी, कभी भी नहीं? No, ma'am. नो मैम। बड़ा word है, कुछ हम कर सकते हैं। एक बार सुनाओ। एक बार सुना हुआ है, किसने सुना हुआ है एक बार बताइए, किसने सुना हुआ है? बच्चों हैंड रेज कीजिए, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? There's nothing to be shy if you've heard this word. मैं मीनिंग नहीं पूछूंगी, बताओ Ma'am, किसने सुना? मैंने नहीं सुना। आपने नहीं सुना है? कोई बोल रहा था पीछे से, मैंने सुना हुआ है, ठीक है। तो किसी को मीनिंग वगैरह पता है क्या? हाँ, मैंने सुना है। आपने सुना है, कहाँ सुना है बच्चे? नहीं पता, भूल गया, बोलो आई फॉरगॉट इट, इट्स ओके। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर नहीं पता है तो बोल सकते हो मैम आई फॉरगॉट इट, सॉरी मैम आई डोंट नो, है ना, आई डोंट रिमेम्बर, बोल सकते हैं। इसमें चुप हो जाने वाली कोई बात नहीं। I don't know. You don't know, it's okay, you don't remember, fine। तो मैनिपुलेट होता है बहकाना। किसी ने सुना है वर्ड बहकाना? जैसे कि दो तरह के दोस्त होते हैं, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम है कल, ठीक है। अब जैसे कि हम किसी भी बच्चे की एग्जाम्पल लेते हैं, सायश्री का एग्जाम है, ठीक है। अब सायश्री का एग्जाम है, तो सायश्री की दो फ्रेंड्स हैं, एक है निशांता, एक है प्रियाशा। निशांता कह रही है सायश्री हमारा एग्जाम है, हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। और वहीं पर प्रियाशा है, प्रियाशा कह रही है हमारा एग्जाम है पर कोई बात नहीं, वो तो रोज ही आते रहते हैं, हर बार आते हैं, चलो हम खेलते हैं, आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो हम बाहर खेलने जाते हैं, ठीक है। बट सायश्री को तो पता है कि उसे पढ़ना है, बट प्रियाशा उसे बार बार बोले जा रही है। प्रियाशा ये बस एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है, ये बस एक एग्जाम्पल है। तो प्रियाशा बार बार बोले जा रही है चलो चलो हम बाहर खेलने चलते हैं, आज तो बहुत अच्छा मौसम है, आज तो ऐसा है पार्क में बहुत सारे झूले आए हैं, ये हुआ है वो हुआ है, कुछ भी बोले जा रही है प्रियाशा। मतलब आपको बहका रही है, आपको अपनी बातों में मतलब इन्फ्लुएंस कर रही है, एक तरीके से अपनी बातें मना रही है, ठीक है। इसको बेसिकली वर्ड को बोलते हैं किसी की बातों में आ जाना, है ना, किसी को बहुत ही अपनी बातों में फंसा लेना, उसे कहते हैं मैनिपुलेट, ठीक है। जैसे बहुत बार हम लोग कितनी स्टोरी सुनते हैं कि जब हमें कोई स्ट्रेंजर मिलता है, बच्चे स्ट्रेंजर कौन होता है? स्ट्रेंजर किसे कहते हैं, किसी को पता है? अनजान। अनजान नहीं जानते। हाँ, नहीं जानते। तो क्या आपको हाँ, जब भी आपको कोई स्ट्रेंजर कुछ खाने को दे, आपको खा लेना चाहिए क्या? नो मैम। नहीं खाना ma'am. चाहिए। No, ma'am. You should not take anything from strangers. You should not go along with them. Strangers के साथ कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए, उनके हाथ से लेके कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट गुड। अब देखो कई कई स्ट्रेंजर्स होते हैं, हम कितनी बारी स्टोरी सुनते हैं कि किसी ने किसी बच्चे को ऐसे किया वैसे किया, मतलब कहीं बार होता है, लॉट ऑफ केसेस आर देयर, राइट। हम न्यूज में सुनते हैं कि कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई बच्चों को पकड़ लेते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, कहते हैं कि चलो हमारे साथ चलो, आपके पापा बुला रहे हैं, आपकी मम्मा बुला रहे हैं, ऐसे ऐसे। हमारे पेरेंट्स भी समझाते हैं कि कभी भी अननोन कोई आए, स्ट्रेंजर आए, उसके पास मत जाओ, है ना। वही होता है अपनी बातों में फंसाना, ठीक है। या फिर कोई दोस्त भी हो सकता है जो आपको बोले कि चलो चलो चलो, गलत काम है बट आपको बोले कि करो, या फिर कोई भी चीज के लिए मैनिपुलेट। हम लोग भी मैनिपुलेट करते हैं, हमेशा गलत काम मैनिपुलेट नहीं होता है बच्चे। जैसे कि मैं बताती हूँ, जब भी आपको कोई स्पेशल चीज खानी है, ठीक है,
आपको रोज आप नॉर्मल फूड खाते हो, फिर कभी कभी आपका मन करता है कुछ अच्छी सी चीज खानी है, करता है कभी कभी मन, सब बच्चों का करते हैं। फिर अपनी मम्मा को मैनिपुलेट करते हो, मम्मा प्लीज आज मुझे ये बना दो, मम्मा प्लीज मुझे बहुत भूख लगी है आज, प्लीज मेरा ये खाने का मन कर रहा है। करते हैं सब बच्चे, करते हैं। Yes, ma'am. मैनिपुलेट है, आप अपनी मम्मा को Yes, ma'am. मनाए जा रहे हो, मनाए जा रहे हो, मनाए जा रहे हो, उसे भी मैनिपुलेट कहा जाता है। एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, आप मनाते जा रहे हो, बस बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, दैट इज मैनिपुलेट ओनली, सम टू सर्टेन एक्सटेंट, कन्विंस करना, मैनिपुलेट करना, ठीक है। तो ये है वर्ड मैनिपुलेट, अच्छा वर्ड है। Yes, ma'am. Yes, वेरी ma'am. गुड। मीनिंग ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को नहीं समझ में आया। हाँ बच्चे, आप मुझे प्लीज अपना एक बार नाम बता दीजिए। अभिषेक है ना, अभिषेक आपको समझ में आया? Yes, ma'am. गुड गुड, वेरी गुड। कोई भी डाउट हो बच्चे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आप मुझसे पूछ लेना कि मैम फिर से समझा दो, ठीक है। तो प्लीज And the मैनिपुलेट की spelling. श्योर श्योर, प्लीज राइट डाउन द स्पेलिंग्स ऑफ मैनिपुलेट। MAN Yes, ma'am. MAN. MANI लिखा, PULATE मैनिपुलेट। सब बच्चे टर्न बाय टर्न मुझे एक बार बोल के बताएंगे ये वर्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम आकांक्षा। वेरी गुड। Manipulate. Ma'am, manipulate. क्या बच्चे? Manipulate. एक एक करके बोलेंगे, रिपीट करो स्पेलिंग्स। MANIPULATE These are the spellings of manipulate. बच्चे थोड़ा क्लियर बोले, नॉट एबल टू फिगर आउट। MANIPULATE. T for tiger। मैं लिख दूं चैट बॉक्स में, शुड आई राइट डाउन? Yes. हाँ, it is already there. Who has written that? हाँ ठीक है, that is the spelling, आप देख सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है। That these are the spellings of manipulate. Done. ठीक है। Now इसका मीनिंग भी लिख लीजिए। बातों में बहकाना, बातों में फंसाना। हिंदी में मीनिंग लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा, जब कॉपी खोलोगे फटाफट से याद आएगा मीनिंग, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे कन्विंस वगैरह वगैरह तो नहीं याद रहेगा, हो सकता है मैनिपुलेट का मीनिंग देखते देखते कन्विंस का मीनिंग ही भूल जाओ, ठीक है। हिंदी में लिख दो, बातों में फंसाना, बातों में बहकाना, बातें मनवाना, ऐसा कुछ भी मीनिंग लिख दो, ठीक है। डन। जैसे ही हो जाए मुझे एक डन बोल दीजिए। आकांक्षा बोल के बताओ ये वर्ड। Ma'am, manipulate. पीयूष? Manipulate. वेरी गुड। सायश्री? Manipulate. प्रियाशा? Manipulate. फिर से बोलो। Manipulate. मैनिपुलेट। निशांता? Manipulate. फिर से बोलो। Manipulate. मैनिपुलेट। अभिषेक? Manipulate. मैनिपुलेट, ठीक है बच्चे, गुड, ठीक है, आप सबने अच्छे से बोला है, नाइस। नाउ द थिंग इज दैट वर्ड सिर्फ आने नहीं चाहिए, बोलने अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, अच्छे से बोलना आना चाहिए, तभी हम प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ करेंगे, क्योंकि थोड़े से बड़े वर्ड हैं, ठीक है, समझ में आया? चलो, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो हम कहते हैं कि बहुत धुंधली धुंधली याद है, होता है, कुछ मेमोरीज होती हैं जो धुंधली धुंधली याद होती हैं, या फिर कोई चीज है जो आपको धुंधली धुंधली दिखती है। क्या होता है धुंधला, क्या होता है? Ma'am, थोड़ा यार. थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा, Ma'am. यस यस। जैसे कि अभी मैं पूछूं कि जब आप बहुत छोटे से थे तो आपका फेवरेट टॉय क्या था? जब आप बहुत छोटे से थे तो आप क्या करते थे? आपकी सबसे बैड हैबिट क्या थी? कुछ बच्चों को ही पता होगा, ठीक है, क्योंकि हमें अपने बचपन का कुछ याद ही नहीं होता जब हम बहुत छोटे से थे, व्हेन वी आर जस्ट लाइक अ स्मॉल किड, है ना, हमें वो चीजें नहीं याद होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो सब धुंधली हो गई हैं, बातें पुरानी हो गई हैं, ठीक है। तो अगर मुझे बोलना हो
कि वो मेमोरीज पूरा धुंधली हो गई हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या वर्ड है धुंधली के लिए? सोचो सोचो, गिव इट अ ट्राई। सायश्री? नो? ओके, सो आई विल ओनली स्पीक, इट्स टू नो सिंपल। मैम, हाँ बच्चे बोलो, आप कुछ बोलना चाहते हो? नो नो मैम, अच्छा ठीक है नो ठीक है ठीक है, आइडिया। मैं इट्स ओके, नो आइडिया, फाइन, आई विल गिव यू एन आइडिया। लिसन टू मी, द वर्ड इज लाइक जो मेमोरी धुंधली हो जाए उसे बोलते हैं ना माय मेमोरीज आर ब्लर्ड, या फिर इट इज अ ब्लर मेमोरी, है ना? ब्लर, ब्लर मतलब प्रॉपरली से याद नहीं है, ब्लर है, ठीक है, अच्छे से याद नहीं है मुझे वो मैम बात। जैसे हाँ मैम मैम हाँ हाँ जैसे बोलो। कि मैम जैसे मेरा परसों एग्जाम है, मैं आज पढ़ा हूँ लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा सा इस आंसर याद है, इस क्वेश्चन का हाँ आंसर हाँ थोड़ा थोड़ा सा ही, हाँ, ये अब वो ज्यादातर मैं आई डोंट रिमेम्बर इट प्रॉपर्ली, आई इट इज रियली ब्लर्ड, मतलब मुझे धुंधला धुंधला याद है, थोड़ा थोड़ा याद है, आई रिमेम्बर इट लिटिल बिट, या फिर आई रिमेम्बर इट ओनली लाइक ब्लर्ड, है ना? ऐसा बोल सकते हो, ठीक है? लिख लो इस वर्ड को प्लीज। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कोई चीजें प्रॉपर्ली देख ही नहीं पाते हैं, है ना? अब आई डोंट नो, लाइक स्पेलिंग एक मिनट में स्पेलिंग, BU यस मैम, BL रियल BLU यस मैम, के बाद क्या है? RRED, बच्चे BLUR यस मैम, RED, ठीक है, डबल R है, BLURRED। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आई वाज स्पीकिंग ओनली एंड देन यू इंटरप्टेड इन बिटवीन। कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं बच्चे जो हम आंखों से देखते हैं और हमें क्लियरली नहीं दिख रही होती। आप लोग कभी किसी हिल स्टेशन वगैरह पे गए हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा फॉग पड़ी हो, धुंध जिसे हम कहते हैं, या फिर हो सकता है आपके अपने होम टाउन में भी पड़ती हो, आई डोंट नो वेयर यू ऑल लिव, राइट? आपने देखी है कभी धुंध, देखी है, देखा है आपने? यस वो फॉग जो बन यस जाती है, मैम, कुछ दिखता नहीं है सामने, कहाँ मैम। दिखता है? हमारे घर के आगे रास्ते में दिखा है। हाँ यस यस, इन विंटर्स, है ना? सर्दियों में अक्सर हमें दिखने को वो मिलता है। तो आप बोल सकते हो आई कांट सी एनीथिंग, द रोड इज ब्लर्ड, है ना? रास्ता धुंधला है। जब आपको कोई चीज प्रॉपरली दिखती नहीं है, प्रॉपरली याद नहीं आती, ऐसे सिचुएशन में ब्लर्ड यूज होता है, ब्लर्ड, BLURRED, ब्लर्ड, ठीक है? लिख दो, नॉट एबल टू सी एनीथिंग प्रॉपरली, है ना? इसे बोला जा सकता है ब्लर्ड, ठीक है? अब ये मैं क्यों आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स करा रही हूँ, आप बोलोगे मैम ये कहाँ से, ये वर्ड्स आपस में कैसे जुड़े हैं? तो ये पिक्चर्स आपको पता है कहाँ हेल्प करेंगे? जैसे मैं आपको पिक्चर डिस्क्रिप्शन देती हूँ, जब मैं आपको पिक्चर देती हूँ आप उस पिक्चर के बारे में इंग्लिश में बोलते हैं। अब कितनी चीजें हमें प्रॉपरली नहीं दिखती हैं, होता है ऐसा पीयूष? थोड़ी यस थोड़ी मैम, दिखती है, तो आप उन चीजों के लिए बोल सकते हो ना, आई कैन सी समथिंग लाइंग ऑन द टेबल बट द पिक्चर इज ब्लर्ड, आई एम नॉट एबल टू सी, है ना? है ना? वैसे ही बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे होते हैं और हमें कई बार टीचर की फोटो ही नहीं दिखती है, बहुत ही रुक रुक के ब्लर्ड पिक्चर दिखती है, आप उसमें भी नोट कर सकते हो मैम ये पिक्चर इज ब्लर्ड, इट्स नॉट क्लियर, ठीक है? एक एक करके बोलो, आई कांट हियर टू स्टूडेंट्स एट वन टाइम। यस पीयूष? मैम मैं कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा निशांता बोलिए। मिस जब नेटवर्क नहीं रहता तो मिस सेंड करी थी, वो भी दुरा दुरा सा दिख रहा है। हाँ तो आप बोल सकते थे मैम यू आर नॉट विजिबल, है ना? मैम योर पिक्चर इज ब्लर्ड, है ना? बहुत बार हमें बहुत चीजें धुंधली धुंधली दिखती हैं, ठीक है? ठीक है, वो चीज है। मैम आगे जब बता दो। हमें मैम जब हमें ऑनलाइन क्लास करते हैं पर मैम की आवाज हमें धीरे धीरे आता है तो हम बोल सकते हैं क्या मैम योर साउंड इज ब्लर्ड? नहीं बच्चे,
मैं बताती हूँ, उसमें आप बोलते हो मैम यू आर नॉट ऑडिबल। दो चीजें सिखाती हूँ, ठीक है, ऑडिबल और विजिबल। ध्यान से सुनना, ठीक है। ऑडिबल और विजिबल। विजिबल का मतलब है आप नहीं दिख रहे हो। पिक्चर जब ब्लर है, ठीक है, तो उसमें आप बोल सकते हो कि योर पिक्चर इज ब्लर्ड, ठीक है। आकांक्षा आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, साउंड के लिए भी आप ब्लर साउंड बोल सकते हो, बट वो एक टेक्निकल टर्म से इतना परफेक्ट नहीं माना जाता। आप उसमें बोल सकते हो मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, ठीक है। दो चीजें हैं, जब नहीं दिखे तो नॉट विजिबल, और नहीं सुनाई दे तो नॉट ऑडिबल। ये चीज क्लियर हुई सब बच्चों को? क्या Yes, होता है ma'am. अभिषेक, रिपीट Yes, कीजिए मैंने ma'am. क्या समझाया अभी। अभिषेक समझाइए क्लास को, मैंने क्या समझाया अभी। क्या होता है ऑडिबल बच्चे? जी बच्चे, क्या होता है ऑडिबल? जब हमें किसी की आवाज, सुनाई नहीं देती। अच्छा आप अभिषेक हो? नो मैम। अच्छा ठीक है। सो अभिषेक, विजिबल क्या होता है, नॉट विजिबल? क्या होता है बच्चे? शाबाश, बोल दो, कोई ऐसे नहीं है, गलत भी बोल दोगे इट्स ओके। जब हमें कोई अच्छे से क्या नहीं होता, नहीं दिखाई दे तो नॉट विजिबल। जब नहीं दिखा देता, ठीक है। अभिषेक बच्चे थोड़े से अटेंटिव रहेंगे क्लास में, ठीक है। ओके, सो या नाउ सिंस वी आर डन विद दिस, ठीक है। आकांक्षा आपका डाउट क्लियर हुआ बच्चे? नॉट Yes, ऑडिबल, नॉट विजिबल, ठीक है। नॉट लगाना है साथ में, क्योंकि विजिबल का मतलब है दिख रहे हो, नॉट लगाओगे तो मतलब नहीं दिख रहे हो, ठीक है। गुड। नेक्स्ट, अगला वर्ड अब करते हैं। आपको पता है कि मिस्टीरियस क्या होता है? मिस्टीरियस, मिस्टीरियस no, ma'am. मैम किसी को नहीं व्हाट पता? वर्ड? मैम कौन सा मिस, वर्ड? मिस्टीरियस, मिस्टीरियस। गुप्त। यस, किसने बताया ये? मैम पीयूष। वेरी गुड। कहाँ पे पढ़ा आपके बच्चे के? मैम क्या? नहीं, ये मेरा बुक में मीनिंग है इसका। अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे गुप्त, मतलब कोई एक सेंटेंस बना के बताओ, हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे मर्जी बना के बताओ, कैसे आप इसको बना सकते हो। अगर आपको क्लास में मैम क्या? समझाना हो सब बच्चों को कि क्या मतलब हुआ इसका, तो बताइए। मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं कह रही हूँ कि अगर आपको समझाना हो क्लास में कोई चीज, तब इस मीनिंग को अच्छे से समझाना हो, क्योंकि जो आपने मीनिंग बोला है वो मैम थोड़ा relevant। साउंड वाज वेरी लो। My sound is not proper, it is very low. No, ma'am. Your sound is very high. My sound is very high, or it's normal, ठीक है। बच्चे, पीयूष सुनो मेरी बात, मैं बोल रही हूँ कि आपने जो आंसर दिया है वो कुछ हद तक ठीक है, ठीक है। अगर आपको यही आंसर थोड़ा और मतलब एक्सप्लेन करना हो क्लास को, तो कैसे करोगे, करके बताओ। अब सब बच्चों को भी तो समझाना है हमें, कैसे समझाओगे, थोड़ा सा ट्राई करो। सायश्री आपको आता है? बच्चे स्टोरी बुक्स पढ़ा करो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, कुछ पढ़ा करो, ठीक है। अपनी नॉर्मल इंग्लिश की बुक्स भी पढ़ लिया करो, आपको वर्ड्स आएंगे अच्छे से। नहीं पीयूष, नो। ठीक है, मैं बताती हूँ व्हाट इज मिस्टीरियस। एक तरीके से ना, आपने बोला कि गुप्त, मतलब बहुत ही सीक्रेटिव है ना, जो मतलब बहुत ही छुपी छुपी सी बात हो। एक हद तक इस आंसर को सही बोल सकते हैं, बट सही में मिस्टीरियस क्या होता है कि जिसमें मिस्ट्री होती है, जो छुपा हुआ होता है, या फिर जो बड़ा ही वियर्ड होता है, बड़ा ही अजीब तरह का, जिसे हम बोलते हैं ना इट्स सो वियर्ड, बहुत ही अजीब सी चीज है। जैसे कि मैंने आप कोई चीज ले आई क्लास में, ठीक है, मैंने आपको एक पिक्चर दे दी, आपको समझ ही नहीं आया वो पिक्चर के बारे में आपने क्या बोलना है, क्योंकि वो पिक्चर आपको इतनी मिस्टीरियस लग रही थी, ठीक है। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मतलब उसमें कोई मिस्ट्री लग रही थी। आपने कभी कार्टून देखा है कोई मिस्ट्री वाला, कहते हैं कि ये वाले कार्टून में मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, या फिर कोई स्टोरी पढ़ी हो मिस्ट्री वाली? नो, नेवर।
मैम जिसके बारे में कोई नहीं जानते। हाँ मतलब कोई अजीब है, उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, उसे वियर्ड बोल सकते हैं, उसे मिस्टीरियस बोल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर इसका मीनिंग भी लिखवाती हूँ, पहले इसकी स्पेलिंग नोट डाउन कीजिए सब। MYS मैम क्या बोले? MYS TE यस मैम। क्या? M। बच्चे शुड आई राइट, बिकॉज स्पेलिंग्स आर बिग, और आप गलत नहीं कर दो, वरना ये क्या क्या मैम क्या ऐसे चलता ही रहेगा। Yeah, these spellings are there on the screen. You can please check out. आगे please note down the spellings on your notebook, and then we can further just go on. बच्चे को नहीं समझ में आया, बोल के बताओ सारे एक साथ में इस वर्ड को कैसे बोलेंगे। ओके, आकांक्षा is showing it on the screen. बोल के बताओ सब बच्चे साथ में इस वर्ड को जल्दी से बताओ, अभी ऑडियो ऑन करते हैं। मैम व्हाट आर यू सेइंग? I am saying मुझे सब बच्चे एक बारी बोल के बताओ प्लीज ये वर्ड को। ठीक है, मैम मिस्टीरियस। मिस्टीरियस। Mysterious. अब इसका meaning, I want everyone to please write down the meaning. बच्चे, I just want 1 second. You will just write down the spellings of this mysterious that I have written in the chat box, and उसके बाद आप इसका वो भी लिखिए, मीनिंग भी लिखिए, जो कि बहुत ही अजीब होता है। जैसे कि हमें कोई चीजें जो है बहुत ही अजीब लगती हैं, जैसे कि मैंने कभी कोई पिक्चर भेज दी जो कि आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि मैम दिस पिक्चर इज सो मिस्टीरियस, है ना, दिस पिक्चर लुक्स सो मिस्टीरियस। या फिर कोई बॉय है जिसने कोई बॉक्स पकड़ा हुआ है, कोई चीज पकड़ी हुई है जो आपको बड़ी अजीब लग रही है, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि द बॉक्स इज सो मिस्टीरियस, द बॉय इज होल्डिंग अ मिस्टीरियस बॉक्स, अ मिस्टीरियस टॉय। ठीक है, समझ में आया? कौन सा मैम बच्चा है? हाँ, ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है जिसको ये चीज नहीं समझ में आई है बच्चों? मैम मिस्टीरियस का मतलब है अजीब। हाँ, अजीब, जो हम किसी को, और एक और मीनिंग हो सकता है इसका, जो हम किसी को अच्छे से बता नहीं पाए। ठीक है, वही चीज हो गई जो थोड़ा अजीब है, अटपटा सा है, वियर्ड है, जो हम किसी को अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, खुद समझ नहीं पा रहे तो किसी को कैसे समझा पाएंगे? दैट इज मिस्टीरियस। ठीक है, ओके ओके मैम। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज मिस्चीवियस। मिस्चीवियस, किसी ने सुना है ये मिस्चीवियस? अक्सर बच्चे बहुत मिस्चीवियस होते हैं कुछ। पीयूष, सुना है? नो मैम। ठीक है, I am writing the spellings in the chat box itself. You can please note down the spellings, because I feel that writing over there is always better, because you keep on asking the spellings then again and again. Right, so the spellings are there on the screen. Please check out. बोल के बताओ पहले मुझे, सब फटाफट से इसको स्पेलिंग को बोल के बताओ। मैम मिस्टीरियस। मैम आप ही एक बार बोल के बता दीजिए। Mischievous, mischievous. Mysterious. Mysterious. Mischievous. Mischievous. Turn by turn. Saishri, Mischievous.
Mysterious. बच्चे मिस्टीरियस नहीं है, मिस्चीवियस है। मैम mysterious. मिस्चीवियस। हाँ बोलो। Mischievous. ओके, सो द स्पेलिंग्स आर मिस्चीवियस। पहले आप इसको बोलेंगे ठीक से बच्चे, पहले इसको ठीक से बोलना सीखेंगे। इसको बोलेंगे मिस्चीवियस। कैसे बोलेंगे देखो, बहुत इजी। मिस बोलते हो ना, मिस ची वियस, मिस्चीवियस, ठीक है। आया समझ में? आया? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो द स्पेलिंग्स ऑफ मिस्चीवियस आर देयर। अब समझ में आ गया कि क्या है ये, राइट? अब मिस्चीवियस का मीनिंग समझो। बहुत बार कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा नॉटी होते हैं। क्या होते हैं? शरारती से होते हैं, नॉटी से होते हैं, उन्हें बोला जाता है मिस्चीवियस, ठीक है। आया समझ में? जैसे कि नॉटी नॉटी शरारती बच्चे हमें मिलते हैं, छोटे छोटे से, जो चीजें तोड़ते फोड़ते रहते हैं, हम उनको बोल सकते हैं। या फिर कई बार पता है कौन से बच्चे होते हैं? छोटे से बच्चे होते हैं जो कि कोई गलती कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको पता है कि उन्होंने ये काम गलत किया हुआ है, पर वो हंसते रहेंगे, है ना। उनकी स्माइल को भी मिस्चीवियस बोला जाता है। मेनली जो ये वर्ड है, ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है स्माइल के लिए, दैट ही इज शोइंग। जैसे कि पीयूष ने क्या किया, पीयूष ने मम्मा का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान तोड़ दिया, ठीक है। फिर मम्मा पूछे जा रहे हैं किसने तोड़ा है, किसने तोड़ा है, किसने तोड़ा है, तो पीयूष ऐसे स्माइल करके बोल रहा है मुझे नहीं पता है किसने तोड़ा है, ठीक है। वो होता है मिस्चीवियस स्माइल, मतलब नॉटी सी स्माइल, ठीक है। पीयूष की बस एग्जाम्पल है, ओके। समझ में आया? होता है ऐसे आप लोगों के साथ कभी घर पे? Yes, ma'am. ऐसा ये सब बच्चों के साथ कभी ना कभी होता है, या फिर हमारे आगे पीछे हमारे कजिन्स, हमारे सिबलिंग्स होते हैं जो कि कभी ऐसा करते हैं। बच्चे सिबलिंग्स क्या होते हैं? हम भाई बहन। वेरी गुड, सबको पता था? नो, आकांक्षा को नहीं पता था। आकांक्षा, सिबलिंग्स होते हैं हमारे भाई बहन, ठीक है। जैसे कि हमारे किसी के, हम बोलते हैं उसके बेटे, उसका बेटा, ऐसे ऐसे दूर पार के जो होते हैं, मतलब किसी हमारे रिश्तेदारों के जो बच्चे होते हैं उनको हम कजन्स कहते हैं। पर हमारे जो अपने भाई बहन होते हैं रियल, उनको हम सिबलिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिबलिंग। सिबलिंग्स। लिख लो इसको, SIBLING, सिबलिंग। एक है तो सिबलिंग, ज्यादा है तो सिबलिंग्स, ठीक है। ओके, yeah. So this is something that we did just now. And how many words have we done? मुझे count करके please बता दीजिए। Ma'am, 6 words. मैम 5 words। I think we should do 2 more words and then we should do little different things. ठीक है, उसके बाद कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। और do you think that these words are enough? मैं फिर इतने ही काफी, because words चाहे जितने मर्जी करो फर्क नहीं पड़ता है बच्चे, बट उनको याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बताओ, मुझे खुद बताओ, बिकॉज मैं नेक्स्ट क्लास में सुनूंगी ये वर्ड्स स्पेलिंग के साथ में। अब खुद बता दूं मैं और करवा दूं या फिर नहीं? यस मैम। Yes, आई ma'am. थिंक Yes, ma'am. बहुत ज्यादा टू लेस है ना, बहुत कम वर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड करते हैं। डू यू नो व्हाट इज कॉम्प्लिकेटेड? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं किया है हमने पहले? No, हम ma'am. बहुत मुश्किल। हाँ ये बाकी बच्चों को पता था ये? Yes, ma'am. यस मैम। स्पेलिंग सुनाओ फिर, शाबाश पीयूष, सुनाओ स्पेलिंग्स। What are you speaking? हम can you hear the spelling? Sure, my dear. Please speak. COMPLETECHED. No, my dear, no. You just went wrong. और किसी को आते हैं?
ठीक है, आपको मीनिंग आता है तो इट्स ओके, आप बस स्पेलिंग्स लिख लो सो दैट इट जस्ट एनहांसेस योर स्पेलिंग पार्ट एज वेल। ठीक है, लिखो प्लीज COM। मैम आई स्पीक द मैम स्पेलिंग। आई कैन मैम हाँ मैम मैम आई सी कैन मैम आई बोलिए कैन बोलिए। COMPLICATED। हेलो मैम आई एम लीविंग द क्लास। So yes, मैम I think there was some like connectivity issue in between, and now where were we? क्या बात कर रहे थे? जी आकांक्षा सुनाइए मुझे स्पेलिंग्स प्लीज। मैम कॉम्प्लिकेटेड जो आपने बोला था, इसके बाद आप क्या बोला, लीव कर गई बीच में। बच्चों कॉम्प्लिकेटेड की ही स्पेलिंग पूछ रही थी आपसे। मैम COMPILED कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको मैं एक ट्रिक बताऊं, कोई भी स्पेलिंग लर्न मैम करने का। मैम मैं बोलूं? मैम आई जी कैन स्पीक यस यू कैन। COMPLICATED। देखो CO ठीक है, COMPLI कॉम्प्ली कॉम्प्ली COMPLI कॉम्प्लिकेटेड CATED। पीयूष आपके पूरे ठीक थे, बस स्मॉल मिस्टेक was there. I think you were using E instead of I. ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को? मैम मैम प्लीज रिपीट द स्पेलिंग। I will write it down so that it doesn't create any sort of confusion for you, right? बच्चे वर्ड्स अभी करने हैं, अपनी नोटबुक को फिल करने के लिए नहीं। अगली बार जब मैं पिक्चर करवाऊंगी ना, मुझे वर्ड्स सुनने हैं मैंने आपसे। Yeah, the word is right there on the screen. Please check out everyone. And just give Ma'am. me a thumbs up when you're done. और जिसको मीनिंग नहीं Ma'am, आता है, मैंने समझना है मुश्किल, बहुत Hello? मुश्किल। हेलो मैम। या पीयूष, यस। मैंने जो वर्ड बोला था आपको वो पूरा सही था। बच्चे आपने ई बोला ना? डिड यू से आई? आपने आई बोला क्या? यस मैम आई बोला। आई डोंट नो, मेबी योर वॉइस इज आल्सो लो। आई हर्ड ई। मैंने आपको मैम पूरा प्लीज स्पेलिंग सुना, बस मैंने आई की जगह ई सुना। आई डोंट नो हाउ। चलो दैट इज गुड अगर आपकी स्पेलिंग्स ठीक थे। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है। अगली बार क्या करेंगे कि सब बच्चे मुझे लिख के बता देंगे, जिनको ट्राई करना है वो लिख के बता देंगे, सो दैट आई कैन चेक दी स्पेलिंग्स मोर लाइक प्रोफिशिएंटली। ठीक है, मैम देख लीजिए कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग। ठीक है, गुड। तो इट्स गुड कि आपको आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चे प्लीज ध्यान रखेंगे और इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो मुझे आता नहीं था, ऐसे अंदाज करके लिखा है मैंने। ओके, अंदाजे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जल्दी से बोलना पीयूष। गेस्ट। हाँ, मे बी नहीं आप बोल सकते हो इट वाज जस्ट अ गेस, है ना? ये बस एक गेस था मैम। मैम आई डिडंट नो द स्पेलिंग्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड बट इट वाज जस्ट अ गेस, या फिर सिंपल मैम इट वाज अ गेस। ये बस एक अंदाजा था मेरा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब लिख लो, जिसको नहीं
है कि वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट को कहा जाता है अक्सर कॉम्प्लिकेटेड, जो हमें समझ में नहीं आती हैं चीजें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एनहांस। अगला जो वर्ड है हम जो करेंगे वो है एनहांस। एनहांस, EN HA। इस कॉम्प्लिकेटेड का मीनिंग क्या है? वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, ठीक है, मुश्किल। मैम इन हैंड, इसके बाद enhance, enhance, EN यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, सी। enhance, enhance क्या होता है? Is anybody aware of this word? मैम हाथों के अंदर, क्या क्या? मैम हाथ के अंदर। नहीं नहीं बच्चे नहीं, स्पेलिंग्स क्या लिखे हैं वो बताओ पहले। enhance, ENHANCE, ठीक है, enhance। मैम we can write the spelling in chat box. Yeah, sure. Spelling से right here on the screen, please check out once again. Enhance का क्या मतलब होता है? Enhance होता है कोई चीज को बढ़ा देना, जैसे कि